اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو درس ہے، سبق ہے، وہ ہے سورۃ البقرہ اور دوسرا پارہ اور اس کی آیت نمبر 196۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اتمو پورا کرو الحج حج کو والعمرہ اور عمرہ کو للہ اللہ کے لیے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ فَإِن پس اگر تم میں اس سے روک دیا جائے یعنی حج یا عمرہ سے، فَمَسْتَيْسَرَ پس جو تمہارے لیے آسان ہو، من الہدی جو قربانی تم کو آسانی سے پہنچے اس کو ادا کر دو۔ ولا اور نہ تحلقوا رؤوسکم تحلقوا اور نہ اترواؤ رؤوسکم اپنے سروں کے یعنی یہ جو بال ہیں ان کو نہ منڈواؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، اس وقت تک اپنے سروں کے بالوں کو نہ منڈواؤ۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ پس جو تم میں سے مریض ہو، او یا پھر بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ وہ اس کا فدیہ ادا کرے گا، مِن صِيَامٍ یا تو وہ روزے رکھے، او یا پھر صدقاتٍ وہ صدقہ کرے گا، او یا پھر نسکٍ کوئی قربانی کرے گا۔ فَإِذَا اور جب تم امن میں ہو، فَمَن تَمَتَّعَ تو پس وہ کیا کرے، ملائے گا عمرہ کو، بالعمرۃ الی الحج اپنے عمرہ کو حج کے ساتھ ملائے گا۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ اور جو آسانی سے تمہارے پاس ہو اس کو تم پہنچاؤ۔ فَمَن لَّمْ اور جو نہ پہنچا سکے یا نہ قربانی کر سکے، یجد اور نہ پا سکے، فَصِيَامُ پس وہ روزے رکھے گا، ثلاثۃ ایام 3 دن کے روزے، فی الحج وہ حج میں رکھے گا، وسبعۃ اور 7 روزے وہ تب رکھے گا، اذا رجعتم راجع یرجع سے جب وہ گھر لوٹ کر آئے گا 7 روزے تب رکھے گا۔ تلک یہ عشرۃ کاملہ یہ کل یعنی پورے کتنے روزے ہو جائیں گے؟ 10 روزے ہو جائیں گے۔ ذالک یہ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام یہ حکم اس شخص کے لیے ہے اور جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، یعنی وہ کہیں اور سے ہو۔ واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے جو اس کے حکم کی نافرمانی کرے۔ تو ہمارا پہلے نماز، پھر روزہ، پھر تھوڑا سا زکوٰۃ کے بارے میں، اب ہمارا تیسرا دن ہے تقریباً کہ حج اور عمرہ کے بارے میں ہی چل رہا ہے۔ پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ حج کے لغوی شرعی معنی، عمرہ کے لغوی شرعی معنی اور ان کے مستحبات واجبات وغیرہ کیا کیا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا وہی سبق ہے، آج بھی اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حج اور عمرہ، لیکن آج ہم ان میں اگلی چیزیں دیکھیں گے کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں، اور یہاں پر ایک اس آیت میں جو ہے حج قران یعنی اپنے عمرہ کو اپنے حج سے ملاؤ، اس والی جو قسم ہے اس کا بھی ذکر آیا ہے، تو ہم آج ان کو دیکھیں گے۔ تو حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج افراد فرد سے نکلا ہے اور فرد ایک ہوتا ہے یعنی اکیلا واحد، تو یہ اکیلا ہوتا ہے حج جس میں صرف مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں اور اس سے پہلے عمرہ نہیں کیا جاتا۔ اور یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو مکہ میں رہتے ہیں وہی یعنی حج کا احرام باندھ لیتے ہیں اور اپنا حج
कर लेती हैं, तो ये कहलाता है हज इफराद। उसके बाद दूसरी किस्म है हज तमत्ता, कि मिकात से उम्र का एहराम बांध लिया जाएगा, फिर उम्र अदा करके अच्छे से सर के बाल मुंडवा कर हलाल हो जाए। फिर 8 तारीख को, यानी जिस दिन हज के रुकन शुरू होते हैं, 8 तारीख को क्या करेगा, हज का एहराम बांधेगा, फिर मनासी के हज अदा करने के बाद हलाल हो जाए। यानी हज तमत्तो, इसका मतलब होता है मिलाना। क्या मतलब होता है? मिलाना। पहले वो अपने उम्रा का एहराम बांधकर उम्रा पूरा करेगा, फिर 8 जिलहज्जा को हज का एहराम बांधकर अपना हज पूरा करेगा। उसके बाद तीसरी और आखिरी किस्म होती है हज किरान, यानी मिकात से एहराम बांध लिया जाए, उम्रा अदा करने के बाद एहराम खोलेगा नहीं। क्योंकि फिर उसी एहराम के साथ वो क्या करेगा, अपना हज के जो रुकन है वो अदा करेगा। फिर हज के बाद वो सर के बाल कटवा कर मुंडवा कर एहराम खोल देगा। हज किरान का मतलब होता है मिला हुआ, यानी एक ही एहराम से वो उम्रा भी करेगा और हज भी करेगा। हज किरान में ज़्यादा मुशक्क़त है और इसका अजर भी ज़्यादा है। अक्सर रवायात के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया था वो हज किरान था। किरान और हज तमत्तो ये दोनों मक्का से बाहर के रहने वालों के लिए है, और जो हज इफराद है वो सिर्फ वो लोग करते हैं जो मक्का में रिहाइश पजीर हैं। उसके बाद ये होता है कि जब बंदा एहराम बांध लेता है, बहुत सारे काम उसके लिए ममनू हो जाते हैं, फिर कुछ काम उसके लिए जायज़ हो जाते हैं, कुछ काम उसके लिए मुस्तहब हो जाते हैं। आज हमारा सबक भी यही है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस नियत से कि हो सकता है कि हमें भी मौका मिल जाए और ये बातें जो आज हम पढ़ रहे हैं हमारे काम आ जाए। इसमें यह है जो ममनू काम है, पहले वो देखते हैं कि जब मर्द एहराम के लिए यानी उसके लिए पहले 2 पाक नई धुली हुई चादरें होंगी। एक चादर उसकी तहबंद की सूरत में वो बांधता है और दूसरी ऊपर ओढ़ लेता है। सर खुला रखता है और औरत के सिले हुए कपड़े होते हैं वो पहनती है, पूरा जिस्म ढांप कर सिर्फ चेहरा खुला रखना होता है। एहराम में जो पाबंदियां हैं वो ये हैं कि जो महरम है, यानी वो अपनी बीवी से जमा का जिक्र करने से भी एतराज़ करेगा, करना तो दूर की बात है, उसका जिक्र भी नहीं कर सकता। ना अपनी बीवी को शहावत से छू सकता है, ना उसको बोसा दे सकता है, और किसी किस्म का कोई गुनाह करने की इजाज़त भी नहीं है, और लड़ाई झगड़ा करने की भी इजाज़त नहीं है। खुश्की के जानवरों का शिकार नहीं करेगा, ना उनकी तरफ इशारा करेगा, ना किसी की रहनुमाई करेगा। कस्तन या बिला कस्त खुशबू भी बंदा नहीं लगा सकता एहराम बांधने के बाद। खुशबू का सूंघना भी मकरूह है, खुशबूदार साबन और शैम्पू भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई चीज़ है यानी खाने की जिसमें से खुशबू आती है, अगर वो पकी हुई है तो उसमें कोई हरज नहीं है। अगर कच्ची हो और दूसरी चीज़ से मखलूत और खुशबू मगलूब हो तो वो फिर जायज़ है। ये खाने वाली के बारे में बात हो रही है, अगर गालिब हो तो जायज़ नहीं है। अगर बाई ने ही खुशबूदार चीज़ खाई तो उस पर दम है। नाखन नहीं काटेगा, चेहरे को नहीं ढांपेगा, चेहरे का बाज़ हिस्सा मसलन मुंह या ठोड़ी को जो है हथेली से नहीं ढांपेगा, यानी वो पूरे का पूरा खुला रहेगा जो भी उसका चेहरा है। सर को भी नहीं ढांपना, दाढ़ी नहीं काटनी, सर में तेल नहीं लगाना, बालों में खिजाब यानी या मेहंदी ऐसी कोई चीज़, ये खिजाब रंग को कहते हैं, कुछ भी नहीं लगा सकता। सर के बाल या बदन के बाल नहीं मुंडवाएगा, सिले हुए कपड़े नहीं पहनेगा, इमामा या टोपी नहीं पहनेगा। सर तो बिल्कुल ही नंगा होगा, जैसे चेहरा और सर एक ही होगा नहीं, इन दोनों का। चमड़े के मोजे नहीं पहनेगा। मोजे पहनने से यहाँ पर इसीलिए मना किया गया है क्योंकि उसमें टखने छुप जाते हैं, तो टखने बंदा नहीं छुपा सकता एहराम बांधने के बाद। अगर ऐसे हैं जिनमें टखने आपके नज़र आते हैं तो फिर आप पहन सकते हैं, वरना नहीं पहन सकते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में इरशाद है कि मौजू को टखनों के नीचे से काट कर पहन सकता है। जुराबें पहनना जायज़ नहीं है क्योंकि उससे भी टखने छुप जाते हैं, वो कवर कर देती हैं। जिस कपड़े को ऐसी चीज़ से रंगा गया हो जिससे रंगने के बाद खुशबू आए, मसलन ज़ाफ़रान और वर्स वगैरह, उसको भी नहीं पहन सकता। मक्का के किसी दरख्त को काट भी नहीं सकता। ये वो पाबंदियां हैं जिनका अमल में लाना बहुत ज़रूरी है।
اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں جائز کام بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کی پابندی ہے، کچھ چیزیں جائز بھی ہیں۔ مثال کے طور پر محرم حمام میں داخل ہو سکتا ہے، مکان یا محمل کے سائے کو حاصل کر سکتا ہے، یعنی چھتری وغیرہ استعمال کر سکتا ہے، دھوپ وغیرہ وہاں بہت سخت ہوتی ہے۔ پھر کوئی چیز اس کے چہرے یا سر کو مس نہ کرے۔ پیسے رکھنے کے لیے وہ ہمیان کمر میں باندھ سکتا ہے، یعنی ایک بیگ ہوتا ہے وہ کمر میں لے کر لٹکا کر اس میں پیسے وغیرہ رکھ سکتا ہے۔ پھر کمر پر وہ یعنی پٹی باندھ سکتا ہے۔ بغیر خوشبو والا سرما لگا سکتا ہے، خوشبو والا نہیں لگا سکتا۔ ختنہ کرا سکتا ہے، فست لگوا سکتا ہے، ڈاڑھ نکلوا سکتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑوا سکتا ہے، سر یا کمر کو کھجا سکتا ہے، لیکن احتیاط سے کہ بال یہ نہ ہو کہ کھڑے کر دے، یعنی آہستہ آہستہ اگر کھجانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو بالکل ہلکا سا کھجائے گا، احتیاط کے ساتھ کہ میں احرام کی حالت میں ہوں۔ اور اس میں یہ ہے اگر 3 بال اکھڑ جائیں کھجاتے ہوئے تو 1 مٹھی طعام یعنی کھانا وہ پھر صدقہ کرے گا۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، بدن پر خوشبو لگانا جائز ہے، خواہ بعد میں خوشبو آتی رہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتا، پہلے لگائے گا، بے شک اس کی خوشبو 24 گھنٹے رہے، 8 گھنٹے رہے، جتنی اس کی ہوگی، لیکن بعد میں وہ خوشبو سے گریز کرے گا۔ مستحب کام بھی ہیں، کثرت تلبی پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب نماز پڑھے یا جب کسی بلندی پر چڑھے یا وادی سے اترے یا سواری سے چڑھے یا مطلب کہیں بھی ہوگا وہ تلبی پڑھے گا، یہی تلبی وہ اس کی زبان پر ہمیشہ جاری رہے گی۔ مکہ میں داخل ہو تو پہلے باب السلام سے داخل ہوگا، یہ مین گیٹ ہے حرم کا، اس کا نام ہے باب السلام یعنی داخلے کا دروازہ۔ اور جب کعبہ کو دیکھے تو 3 بار تکبیر اور ساتھ کلمہ طیبہ پڑھے گا، اور پہلی نظر پڑھتے ہی دعا کرے گا۔ اس وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، بلکہ مقبول لکھا ہوا ہے، مقبول ہوتی ہے، اور یہ دعا بھی کرے اے اللہ ہمارے دلوں میں کعبہ کی محبت، اس کی تعظیم اور ہیبت کو پیدا کر دے۔ پھر اس کے بعد عمرہ کرنے کا طریقہ، جن کے ارادے ہیں جانے کے وہ ذرا آج اس سبق کو دھیان سے سنیں گے۔ پورا طریقہ ہے عمرہ کرنے کا، میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ یہ ہے کہ جو غیر مکی یعنی جو مکہ کا نہیں ہوگا بندہ، جیسے ہم یہاں سے جاتے ہیں میقات سے، وہ احرام باندھ لے گا، اور پاکستان کے رہنے والے ہوائی جہاز سے اگر سفر کرتے ہیں وہ اپنے گھر میں غسل کر کے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، اور ایئرپورٹ کے لاؤنج میں 2 رکعت نماز پڑھ کر وہ عمرہ کی نیت کر لیں گے۔ اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دے، میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ پھر راستے میں با کثرت تلبی کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کرے، یعنی بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کرے گا۔ طواف کیا ہوتا ہے؟ اس کے گرد چکر لگانا، اور طواف میں استباء، احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈالے گا، 3 چکروں میں رمل یعنی کندھے اچکا کے چلے گا، جو پہلے 3 چکر ہیں ان میں ہلا ہلا کر دوڑتے ہوئے طواف کرے۔ حجر اسود کے سامنے سے جب بھی گزرے اگر ممکن ہو تو بوسہ دے، ورنہ اس کی طرف منہ کر کے اس کی طرف دونوں ہتھیلیاں اس طرح کرے جیسے اس کے اوپر رکھ رہا ہو، یعنی یہ والی صورت بنا لے، اور پھر اس پر کیا پڑھے گا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، اپنی ہتھیلیوں کو بوسہ دے، پھر جب رکن یمانی سے کے پاس سے گزرے گا تو اس کو بھی چھو کر اس کی تعظیم کرے گا۔ اس کے رکن یمانی میں بوسے کے بارے میں اختلاف ہے، اگر ہو سکتا ہے دے سکتا ہے آسانی سے تو دے دے، نہیں تو اتنا ضروری بھی نہیں ہے۔ پھر حجر اسود کی تعظیم کے ساتھ طواف کو ختم کرے، پھر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر سعی کے 7 چکر پورے کرے گا۔ سعی صفا سے شروع کرنی ہے، یہ 2 پہاڑیاں ہیں، صفا بھی ہے مروہ بھی ہے، صفا سے شروع کرے گا اور مروہ پر ختم کرے گا۔ صفا پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھتے ہوئے یعنی اس کی طرف منہ کرے گا اور پڑھے گا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھے گا، پھر دونوں ہاتھ کو بلند کرے گا، پھر مروہ کی طرف روانہ ہو کر
और रास्ता में दो सब्ज निशानों के दरमियान से दौड़ता हुआ गुजरेगा। तवाफ और सई के दरमियान उसको जो दुआएं, जो अज़कार वगैरह जितने भी हैं याद हैं तो वो पढ़ ले और खुशू और खुजू के साथ पढ़ेगा। फिर सफ़ा और मरवा का जब तवाफ मुकम्मल हो जाएगा, फिर महरम सर के बाल कटवा ले या मुंडवा ले, अब उसका उम्रा मुकम्मल हो गया। वो एहराम की पाबंदियों से भी आज़ाद हो गया। जैसे ही सर के बाल उतरवाते हैं, आखिरी जो काम होता है उम्रा में यही होता है, उसके बाद एहराम खोल दिया जाता है और पाबंदियों से बंदा आज़ाद हो जाता है। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो लड़ाई झगड़ा और गुनाह के कामों में पड़ जाए। अब उसने उम्रा किया है तो उससे चाहिए वो एहतियात से रहे, ना कोई फैश बातें करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना कोई गुनाह के काम करे, और 8 ज़िल-हज्जा तक हस्बे इस्तात उम्रे करता रहे। जितना वो अल्लाह के घर का तवाफ़ कर सकता है वो खुशू व खुजू के साथ करता रहे। फिर उम्रा और तवाफ़ में तवाफ़ की ज़्यादा फजीलत है। मस्जिद हराम में कम से कम एक बार कुरान पाक का ख़त्म करना लाजमी है, एक बार। वैसे करने वाले तो फिर सुबह शाम करते हैं, लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, एक ख़त्म आपने लाजमी करना है वहाँ पर। फिर उसके बाद एक यहाँ पर चीज़ आई हुई है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज़ों का अजर व सवाब भी बढ़ा दिया जाता है। इसमें हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़ी, उसकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, उसके लिए जहन्नुम से बरात और अजाब से निजात लिख दी जाएगी और वो नफाक से बरी हो जाएगा। मुस्नद अहमद की 3री जिल्द की ये हदीस है। फिर इसी तरह हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का 1 लाख नमाजों का अजर है, 1 नमाज का अजर, और मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने का 1000 नमाजों का अजर है, और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का 500 नमाजों का अजर मिलता है। वहाँ पर इबादतें और उनका ज़ौक़, उनका शौक़ अगर बंदा खुशू और खुजू के साथ करे तो यहाँ की 1 नमाज वहाँ की लाखों के बराबर चली जाती है। लेकिन ये है कि बंदा खुशू और खुजू को सामने रखेगा, ज़िक्र अज़कार जैसा हमें अभी बताया गया है कि ना कोई लड़ाई झगड़ा करे, ना फाहश बातें करे, यानी अपने आप को अल्लाह के हवाले समझे। उसके बाद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने का तरीका। इसमें यह है, जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का कस्द रखता हो, इरादा रखता हो, उसको चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आप पर दरूद शरीफ पढ़े, क्योंकि आप खुद भी दरूद शरीफ को सुनते हैं और फरिश्ते भी आपके पास दरूद शरीफ पढ़ते हैं। और जब ज़ाहिर मदीना मुनव्वरा की दीवारों को देखें, यानी जाने वाले, तो क्या करें, आप पर दरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद ये कहें, ऐ अल्लाह, ये तेरे नबी का हरम है और तेरी वही के नाजिल होने की जगह है, तू मुझे यहाँ हाजिर होने की नेमत अता फरमा, यहाँ की हाजिरी को मेरे लिए जहन्नुम से निजात का ज़रिया बना, मुझे क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से बहरामंद फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने से पहले गुस्ल करे, अच्छा लिबास ज़ेब तन करे, खुशबू लगाए और इंतहाई तवाज़ो इनकसार के साथ आपके रोज़े की तरफ रवाना हो और दरूद शरीफ पढ़ता हुआ अपनी मग़फ़रत की दुआएं मांगता हुआ चलता रहे, और जब नज़र पड़े तो फिर कहे, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि रब्बिदखिलनी मुदखिल सदका व अखरिजनी मुखरिज सदका वजअल्ली मिल्लदुनका सुल्तानन नसीरा अल्लाहुम्मा अग़फिरली ज़नूबी वफ़्तली अब्वाबी रहमतिका। फिर मस्जिद शरीफ में दाखिल हो, पहले पहले वो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ेगा, फिर आपकी कब्र शरीफ और मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। फिर जब उस जगह वो रकात पढ़ेगा बतौर शुक्र 2 रकात के, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये जगह दिखाई। फिर नबी के कब्र से 4 हाथ के फासले पर अदब से खड़ा हो, कितने, 4 हाथ के फासले पर आपके मवाजा शरीफ, मवाजा कहते हैं सर और चेहरा, आपके मवाजा शरीफ की तरफ मुंह और काबा की तरफ पीठ करे और फिर यूं सलाम अर्ज करेगा। ये सलाम बहुत खूबसूरत है। अस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह,
अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबीउर रहमा, अस्सलामु अलैका या शफीउल उम्मा, अस्सलामु अलैका या सय्यिदुल मुरसलीन, अस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैका या मुज़म्मिल, अस्सलामु अलैका या मुदस्सिर, अस्सलामु अलैका व अला सलवात तय्यबीन व अहली बैतिक त्वाहिरीन। ये ख़त्म करने के बाद कहे, या अल्लाह मैं गवाही देती हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं, आपने फरीज़ा रिसालत को अदा कर दिया और अमानत को हम तक पहुँचा दिया, उम्मत की खैर खाही की और वाज़े दलाइल बयान किए और अल्लाह की राह में जिहाद का हक़ अदा किया, दीन को कायम किया, हत्ता कि आप रफ़ीक़ आला से वासिल हो गए। अल्लाह ताला आप पर सलातो सलाम नाजिल फरमाए। जिस जगह आप अपने अजसद अतहर के साथ तशरीफ़ फरमा हैं वो जगह तमाम जगहों से अफजल है। अल्लाह ताला आप पर और उस जगह पर हमेशा इतनी बार सलातो सलाम नाजिल फरमाए जिसका वादा अल्लाह ही के इल्म में है। या रसूल अल्लाह हम आपके हरम मुक़द्दस आपकी अजीम बारगाह में हाजिर हैं। हम दूर दराज के इलाकों से आपके हजूर में आपकी शिफात की उम्मीद से आए हैं। आप हमारे रब के हजूर हमारी शिफात फरमाएं। गुनाहों के बोझ से हमारी कमर टूट रही है, आप ही ऐसे शिफात करने वाले हैं जिससे शफात कुबरा मकाम महमूद और वसीले का वादा किया गया है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया है सूरत अन-निसा में, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका व फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लावजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें, आपके पास आएँ, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें और रसूल भी उनकी शफाअत करें तो बेशक अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला पाएंगे और क्या बहुत रहम करने वाला भी पाएंगे। और बेशक फिर कहे कि हम अपनी जानों पर जुल्म करके आपके पास आए हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते हैं, सो आप हमारे लिए अपने रब से हमारे लिए शिफात कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए आपकी सुन्नत पर हमारा ख़ात्मा फरमाए, आपके दीन में हमें क़यामत के दिन उठाए और हमें आपके हौज़े कौसर पर वारिद करे, बग़ैर किसी शर्मिंदगी रुसवाई के हमें आबे कौसर पिलाए। या रसूल अल्लाह शिफात फरमाइए, या रसूल अल्लाह शिफात फरमाइए, या रसूल अल्लाह शिफात फरमाइए। ये अल्फाज वो 3 बार कहेगा। फिर ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, जो हमसे पहले फ़ौत हो गए हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमारे दिलों में कीना न रख, ए रब तू रऊफ़ है रहीम है। फिर जिन लोगों ने आपको सलाम पहुँचाने की दरख्वास्त की है उनका सलाम भी पेश करें और कहें, या रसूल अल्लाह फ़लाँ बिन फ़लाँ की तरफ से आपको सलाम हो। या रसूल अल्लाह वो आपसे शफाअत के तलबगार हैं, उनकी भी शफाअत फरमाएं। फिर दरूद शरीफ पढ़े, फिर जो चाहे रब से मांगे। उसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक भी आपके दाहिने और बाहिने मौजूद हैं, तो उनको भी आपने सलाम पेश करना है। फिर क्या करेगा, हज़रत अबू बकर के सर के बिलमुकाबिल खड़ा हो जाए और कहे, अस्सलामु अलैका या खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैका या साहिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनीसिही फिल गारी व रफ़ीक़िही फिल अस्फारी व अमीनिही फिल असरारी। और फिर कहे, आपने बेहतरीन नियाबत की, अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर आप कायम रहे और आपके तरीक़े के मुताबिक कारे खिलाफत इंजाम दिए। आपने मुर्तदीन मुबत्तिईन से किताल, इस्लाम के किले को मजबूत किया। आप बेशक बेहतरीन इमाम थे। आप भी हमारी जो है, हम आपकी खिदमत में कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारे लिए भी दुआ करें, वो हमारे दिलों में हमेशा आपकी मोहब्बत और क़यामत के दिन हमें आपकी जमात में से उठाए और हमारी इस ज़ियारत को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। फिर हज़रत उम्र के सर के बिलमुकाबिल खड़ा होगा, फिर वहाँ पर भी सलाम अर्ज़ करेगा, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या मज़हरुल इस्लाम, अस्सलामु अलैका या मुकस्सिरुल असनाम। फिर उनकी भी कि आपने अल्लाह यानी अल्लाह आपको हमारी तरफ अल्लाह ताला ने बेहतरीन
यानी करके भेजा, फिर अल्लाह आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। फिर आपने इस्लाम और मुसलमानों की नुसरत और आपने बहुत सी फतूहात हासिल की, मुसलमानों के लिए बहुत सी सरज़मीन को शाद और आबाद किया। और फिर इस तरह आपकी तारीफ़ करते हुए फिर कहे कि आप पर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक, शफ़ीक और मेहरबान साथी और दोस्त थे, आप दोनों पर सलाम हो। अल्लाह आपको हमारी तरफ से, तमाम मुसलमान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आपकी खिदमत में इसीलिए हाजिर हुए हैं, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करें, हजूर हमारी शफाअत फरमाएँ और अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाएँ वो हमारे इस हज और ज़ियारत को कबूल फरमाए, हमें आपके दीन पर ज़िंदा और हमारा इसी पर फिर ख़ात्मा रखे। फिर आखिर में कहे अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर से सलाम लेने के बाद फिर अदबन हजूर की बारगाह में हाजिर हो जाएगा। जितना दिल करे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर खड़ा होकर बाअदब सलातो सलाम पढ़ता रहे और अपने लिए शफाअत की और बाकी दुआएं भी पेश करता रहे। फिर हज़रत अबू लुबाबा रदियल्लाहु अन्हु, ये इनका एक सतून है, वहाँ पर लिखा भी हुआ है, निशानी भी लगाई गई है, इस सतून की भी बड़ी फजीलत है। उसके पास नमाज पढ़े, फिर जो बाकी यानी मदीना में मुतबरिक मकामात हैं वहाँ पर भी नमाज़ें पढ़े, बकी शरीफ में जाए, शोहदा ओहद की कब्र पर जाए, सैयदना अमीर हमज़ा की कब्र पर जाकर फातिहा खानी करे, हज़रत उस्मान, हजूर के साहबजादा हज़रत इब्राहीम, अज़वाज मुतहरात, दीगर शोहदा की कब्रों पर भी हाजिर हो और तमाम मज़ारात पर आयतल कुर्सी और 11 बार सूरह इखलास भी पढ़ता रहे और अगर याद हो तो सूरह यासीन भी पढ़ ले और रसूल के वास्ता से उनका सवाब उन तमाम अरवाह कुदसिया को पहुँचाए। मस्जिद कुबा में हाजिर होकर वहाँ पर भी फिर नमाज पढ़े, फिर 2 रकात नमाज पढ़ने का अजर मस्जिद कुबा में 1 उम्रे के बराबर है। और फिर क्या करे, ये तमाम चीज़ें करे, मस्जिद किबलतैन, मसाजिद सबा, तमाम मशाहिद की भी ज़ियारत करे। उसके बाद अल्लाह का इरशाद है और हज और उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो। इसका मानी है हज और उम्रा के तमाम शराइत, फ़राइज़, वाजिबात को अदा करो, ये कामिल हो, नाकिस ना हो। अगर तुम जाओ तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखो जो आपको बताई जा रही हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया, सो अगर तुम को हज या उम्रा से रोक दिया जाए तो क्या करो, कुर्बानी तुमको आसानी से हासिल हो वो भेज दो और जब तक कुर्बानी अपनी जगह पर ना पहुंच जाए उस वक्त तक अपने सरों को ना मुंडवाओ, यानी अपने इहराम में बरकरार हो और हलाली ना हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं हज और उम्रा के मुतालिक कि हज का प्रॉपर तरीका, फिर हजूर की बारगाह में हाजिर होने का निहायत ही खूबसूरत तरीका है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। फिर ये है कि ज़रूरत की वजह से मना में पहुँचने से पहले सर मुंडाने की भी इजाज़त है। इसमें अब्दुल्ला बिन मोकल बयान करते हैं, हज़रत काब बिन अजरा रदियल्लाहु अन्हु के पास मस्जिद कुबा में बैठा हुआ था, मैंने उनसे रोज़ा के फिद्या के मुतालिक सवाल किया। उन्होंने कहा मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाया गया, हालांकि मेरे सर पर जुएं टपक रही थी। आपने फरमाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम पर कैसी मुसीबत देख रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास कुर्बानी के लिए एक बकरी भी नहीं है? मैंने कहा नहीं। आपने फरमाया 3 दिन के रोज़े रखो या 6 मस्कीनों को खाना खिलाओ, हर मस्कीन को निस्फ सा यानी 2 किलोग्राम ताम कहते हैं गंदम को, दो और अपना सर मुंडवाओ। ये आयत ख़ास मेरे मुतालिक नाजिर हुई लेकिन तुम्हारे लिए भी आम है। फिर यह है कि जब कोई मरीज़ हो फ़ौरन सर मुंडवाने की उसको ज़रूरत है या कोई ज़ख़म है या कोई दर्द है, कोई ऐसा मसला है तो वो फ़ौरन सर मुंडवा सकता है। तो यही इसी में बताया जा रहा है। फिर अल्लाह ने फरमाया जब तुम हालत अमन में हो, जो शख्स हज के साथ उम्रा मिलाए तो वो एक कुर्बानी करे और जिसको वो आसानी के साथ अदा कर सकता हो, यानी हज और उम्रा करे इकट्ठा, कुर्बानी एक कर सकता है। वैसे उम्रे की अलग कुर्बानी, हज की अलग कुर्बानी, ऐसा ना करे। अगर उसने एक ही एहराम से हज और उम्रा किया है तो वो एक ही कुर्बानी करेगा जो उसको आसानी से मुयस्सर होगी। फिर जो कुर्बानी ना कर सके वो क्या करेगा, 3 रोज़े रखे, वो अयाम हज में रखेगा
7 रोज़े वो वापस आकर रखेगा, टोटल कितने रोज़े हो जाएंगे? 10 रोज़े होंगे। ये 10 रोज़े वो अपने पूरे करेगा। ये हज तमत्तो का हुक्म उस शख्स के लिए है जिसके अहलो हयाल मस्जिद हराम में रहने वाले ना हों। ये यानी हम लोगों के लिए हुक्म है। अगर आपने हज कर लिया है पूरे अच्छे तरीके से, कुर्बानी की फुर्सत नहीं है, तो उसके बाद आप 3 रोज़े वहाँ रखोगे वहीं पर, और बाकी जो 7 रोज़े हैं वो घर आकर रखोगे। टोटल कितने रोज़े? 10 रोज़े पूरे होंगे। फिर हज तमत्तो के बारे में एक तफसीर है कि भाई ये ज़माना अमन में हज तमत्तो का बयान फरमाया गया है। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में तमत्तो किया और किरान इसके मुवाफिक नाजिल हो चुका था। फिर एक शख्स ने अपनी राय से इत्तिहाद किया, यानी जिसको जो हज बेहतर लगा उसने वही हज अदा किया। इसमें नहीं है कि भाई आपने ज़रूरी है कि यहाँ पर हज और उम्रा इकट्ठा एक ही एहराम में आया हुआ है तो वही करना है, उसमें मुशक्क़त थोड़ी ज़्यादा है। जो आप आसानी से कर सको वही कर लो। फिर अल्लाह ने फरमाया हज के जिन महीनों का अल्लाह ताला ने अपनी किताब में ज़िक्र फरमाया वो शवाल, ज़िलक़दा, ज़िलहज्जा है। सो जो शख्स इन महीनों में तमत्ता करे उस पर कुर्बानी लाजिम है, या कुर्बानी नहीं तो वो रोज़े रखेगा। फिर ये भी वाज़े हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया वो हज किरान था। कौन सा हज था? हज किरान था, और यही सबसे अफजल हज भी है। क्यों? क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और हमें दिखाया। नबी के रोज़े पे जाने वालों, मेरा भी उनको सलाम कहना। मिलो तो कहना कि कब मिलोगे, बेवक्त के हैं बस आम। उनसे कहना चलते चलते काफिले से बिछड़ गया हूँ, चलते चलते काफिले से बिछड़ गया हूँ। मुझे बुला लो तो मैं भी देखूँ कहाँ है जन्नतों का रास्ता। और नदामतों के चिराग सारे हमारे अश्कों में जल रहे हैं। नबी के रोज़े पे जाने वालों, मेरा भी उनको सलाम कहना। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।